Dear students, in the previous lecture about the preparations of haloalkanes, we have discussed here how we are in a position to prepare haloalkanes from alcohols. Now, in today's lecture, we will discuss preparations of haloalkanes from hydrocarbons. That is the second preparation from hydrocarbons. That is R single bond H. General formula for hydrocarbons. We can say, generally we will say that hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. Dear students, as you know, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स भी आते हैं, एल्कीन्स भी आते हैं एंड एल्काइन्स भी. हाँ, जिस तरह से हमने एल्कोहल्स में कहा था कि देयर आर वेरियस मेथड्स, पार्ट बाय पार्ट हमने वहां पे डिस्कस किया कि किस तरह से हम अल्कोहल को जब हम हेलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन कराते हैं, फिर फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ, और हर एक पार्ट का, हर एक स्टेप का मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया. नाउ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स, एज यू नो, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड एल्केन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ वी विल प्रिपेयर. एक्चुअली वी आर discussing the preparations of haloalkanes from hydrocarbons, various methods for the preparations of haloalkanes. Now first part mein with respect to hydrocarbons we will discuss from alkenes. Shabash. As you know, alkenes, these are the unsaturated hydrocarbons containing the double carbon double bond. For example, मेरे पास CH2 double bond CH2 है. This is an example of alkene. With respect to alkenes, it has been found that when alkenes, for example, this is ethene, is treated with halogen acids, HX, there is the formation of CH3, CH2X. These are alkyl हैलाइड्स और हैलोएल्केन्स. बहुत सिंपल है. यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. हियर इन दिस वेरी केस हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स H पॉजिटिव X नेगेटिव. यहां पे किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज. सिंपल है बिकॉज इट इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन. इट इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन. Mind it, dear students, whenever we are treating alkenes with halogen acids या hydrogen halides, this is an electrophilic addition. This is an electrophilic addition. Reaction mechanism में I will be in a position to अपलोड सीरीज ऑफ लेक्चर्स अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म. वहां पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी एक टाइप है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वहां पे हम ये डिस्कस कर लेंगे. लेकिन रिमेंबर दैट व्हेनेवर एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड्स देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज नोन, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट an electrophile is added and after that nucleophile. Here in this very case it dissociates into H positive X negative. पहले H positive ऐड हो जाएगा, उसके बाद X negative. Here in this very case कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. जिस पे नेगेटिव चार्ज उस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज उस पे न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस X नेगेटिव ऐड हो जाएगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड. सिंपल है. नाउ यहां पे मेन कंसेप्ट यहां पे आता है when there is an unsymmetrical alkene. When there is an unsymmetrical alkene, this is symmetrical alkene. Here in this very case, when it is treated with HX, means hydrogen halide, it may be HCl, HBr, HI. Shabash. There is the formation of what will be the product, and in this very case you have to
you have to remember the addition takes place according to Markovnikov's rule. MO, huh? As per Markovnikov's rule, during the addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkenes, remember that, यहाँ पे मैं लिखूंगा, with respect to symmetrical alkene, आपके पास चॉइस है X या इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा, या हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा उसके बगल वाले कार्बन पे X जाएगा. लेकिन if there is an unsymmetrical alkane, you have to follow Markovnikov's rule. What is Markovnikov's rule? During the addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkenes, यहाँ पे मैं Markovnikov's rule लिखूंगा, उसके बाद आप खुद ब खुद प्रोडक्ट बता सकते हो. शाबाश. MO rule. Addition of HX to unsymmetrical alkenes takes place in such a way so that electrophilic part, yeah, hydrogen, what we can say, so that electrophilic part attaches itself to that very carbon atom containing maximum number of hydrogen atoms. शाबाश, बहुत सिंपल है. एक लाइन में मार्कोनिकॉफ्स रूल आप लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो. मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है अगर हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्केन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट कराया, व्हाट हैपेंस देयर, जो हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट होता है मींस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच हो जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे. यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, शाबाश, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है? एक ही है. रिमेंबर दैट एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल, यहाँ पे मैंने लिखा एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स टेक्स प्लेस इन सच ए वे सो दैट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पे क्या है? इट इज H पॉजिटिव. न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है? X नेगेटिव. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट. Remember that whenever we are treating hydrogen halides with alkenes, this is an example of electrophilic addition reaction. पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल. That is why यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल पार्ट की बात की. इलेक्ट्रोफाइल पार्ट attaches itself to that very carbon atom containing maximum number of, यहाँ पे मैं लिखूंगा to that very double bonded carbon atom containing maximum number of hydrogen atoms. अब आप खुद यहाँ पे लिख सकते हो किसके पास हाइड्रोजन जाएगा. जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसका जो बगल वाला कार्बन एटम होता है उसी के पास, शाबाश, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाएगा. मींस यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH, यहाँ पे X और यहाँ पे CH3. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH2H. दिस इज द मेन प्रोडक्ट. यहाँ पे शाबाश, एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल. शाबाश, यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्कोनिकॉफ्स रूल की डेफिनेशन. इतना याद रख लीजिए,
अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है, हमने इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट कराया, हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव पार्ट होगा मतलब हाइड्रोजन होगा, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच हो जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे नेगेटिव पार्ट उसी पे जाएगा. दैट इज एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल. नाउ what is the mechanism behind this very Markovnikov's rule? Markovnikov's rule के पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्यों ये H पॉजिटिव या व्हाट वी कैन से ये X नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा और H पॉजिटिव इस कार्बन पे जाएगा. हाँ, शाबाश. मैकेनिज्म here in this very case this is the preparation of alkyl halide. This is the preparation of alkyl halide. This is known as शाबाश 2 हेलो 1 2 3 2 हेलो प्रोपेन. अगर यहां पे देख लीजिए, मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा और HCl होगा. हाँ, शाबाश. नाउ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल एडिशन हो जाएगा. हाँ, MO रूल. यहाँ पे CH के साथ Cl आ जाएगा. हाँ, और CH2 के साथ H आ जाएगा. मीन्स यहाँ पे CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है. दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन. दिस इज इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. हाँ, शाबाश. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड मार्कोनिकॉफ्स रूल. देख लीजिए बेटा, यहां पे मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है. मैंने अभी कहा आप लोगों को कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऐड हो जाएगा. वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या है, दैट इज H पॉजिटिव. दैट इज H पॉजिटिव. देख लीजिए बेटा, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं. यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर H पॉजिटिव इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा, मतलब इस कार्बन एटम पे जाएगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव. देख लीजिए बेटा, व्हाट आई एम सेइंग, ये H पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा. सपोज इस कार्बन एटम पे इसने अटैक किया, मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. दैट इज व्हाई ये CH2 बन जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे. यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर H पॉजिटिव ने यहाँ पे अटैक किया तो CH3 और ये CH पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड CH3. मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसी पे अटैक किया H पॉजिटिव ने, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे 2 कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है. मींस यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है. एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, secondary carbocation is more stable than primary carbocation. This is the mechanism behind Markovnikov's addition. Behind Markovnikov's addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkanes, यहाँ पे actually एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा. और जब अगर यहाँ पे X अटैक कर लेगा, यहाँ पे X ने अटैक किया, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड किया, अटैक किया, इस कार्बन एटम पे अटैक किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज व्हाई जो मेन प्रोडक्ट होगा इट विल फॉर्म थ्रू शाबाश मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. जो X नेगेटिव होगा, चाहे वो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव. दैट इज व्हाई यहाँ पे CH, उसके बाद X और उसके बाद CH3, ये मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये बन जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश. व्हाई in case of Markovnikov's rule the addition takes place, that the hydrogen atom will attack itself to that very carbon atom which contains the maximum number of hydrogen atoms.
शाबाश। होता क्या है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी। अगर H पॉजिटिव ने यहाँ पे अटैक किया तो पहले यहाँ पे उस कार्बन एटम पे अटैक किया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला कार्बन एटम होता है वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है इट इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मींस दिस with the help of Markovnikov addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkenes, we are in a position to prepare haloalkenes or alkyl halides. शाबाश। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में यहां पे एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अगर यहां पे आप लोगों से कोई कहेगा HCl when this very organic compound means 2,3-methyl, what we can say 2-methyl butene, शाबाश, is treated with HCl। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, शाबाश। H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उस कार्बन, ये और ये कार्बन, ये दो कार्बन एटम, इनके बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इस पे दो हाइड्रोजन एटम्स है, मींस यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और क्लोरीन कहाँ पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे, शाबाश। दिस विल बी द प्रोडक्ट हियर, C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा अब CH2 CH3। दिस विल बी इट इज मेजर प्रोडक्ट। सपोज इस तरह से होगा, सपोज इस तरह से होगा, सपोज यहां पे HCl। डियर स्टूडेंट्स, एज पर मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहां पे H उस कार्बन एटम पे अटैक कर लेगा, शाबाश, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके पास एक है, इस पे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मींस हाइड्रोजन एटम यहां पे अटैक कर लेगा। लेकिन यहां पे भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है एज पर मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाइड्रोजन किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां पे हो जाएगा, इन दो के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मींस यहां पे आ जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट कौन सा बन जाता है, इंटरमीडिएट कौन सा बन जाता है, यहां पे H और यहां पे CH पॉजिटिव, यहां पे CH3। रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हमेशा बन जाता है। यहां पे कौन सा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां पे CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद Cl नेगेटिव यहां पे अटैक कर लेगा, मींस यहां पे ये इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, CH3 पॉजिटिव CH2 CH3 और बाद में Cl नेगेटिव यहां पे अटैक करता है और प्रोडक्ट ये बन जाता है। यहां पे देख लीजिए बेटा, मैंने इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन यहां पे दिखाई आप लोगों को। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो जाता है, यहां पे ऐड हो जाएगा एज पर मार्कोनिकॉफ एडिशन, बट यहां पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे और एक पॉसिबिलिटी है बेटा, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक पॉसिबिलिटी है, यहां पे टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर ये H as H negative, this is known as hydride ion or hydride shift। यहां विद इट इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाएगा। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3, यहां पे अब ये 3 कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां पे Cl नेगेटिव अटैक कर लेगा और मेन जो प्रोडक्ट होगा यहां पे इस वाली एग्जांपल पे यहां पे CH2 CH3 एज पर द मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहां पे Cl, यहां पे H। लेकिन
remember that in case of whenever any carbocation is formed, whenever any carbocation intermediate is formed, carbocation intermediate में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पे वहाँ पे बताया था कि in case of the intermediate carbocations there is rearrangement, वहाँ पे rearrangement की possibility होती है और हमेशा इस ताक में रहता है इंटरमीडिएट ताकि वो एक कंप्लीटली स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन वहां पे कराए. रिमेंबर दैट हियर यहाँ पे H एज H नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी विद द रिजल्ट मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा. शाबाश. दिस इज द प्रेपरेशन, सिंपल प्रेपरेशन विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन. पहले आप लिखोगे from alkenes when alkenes are treated with hydrogen halides, symmetrical alkene. जब unsymmetrical alkene को आपने हाइड्रोजन हेलाइड के साथ ट्रीट कराया तो मार्कोनी का आपस एडिशन हो जाएगा. सिंपल एग्जांपल्स ले लीजिए. ये वाली एग्जांपल मैंने विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाई कि कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स टू एल्कीन्स, दिस इज एन there is the formation of a carbocation intermediate and rearrangement की possibility वहां पे होती है. Now यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने HBr को ट्रीट किया और वहां पे रिएक्शन में दिखाता है peroxides. When unsymmetrical alkenes are treated with hydrogen bromide in the presence of peroxides, the addition takes place against Markovnikov's rule. As per Markovnikov's rule, H कहाँ पे आता है? CH2 पे अटैक करता, while as Br यहाँ पे आता. लेकिन इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? CH, CH2, CH2, Br. Means अगेंस्ट या एंटी एमओ एडिशन हो जाता है यहाँ पे. हाँ, ये हमेशा याद रख लीजिए. एंटी मार्कोनिक एडिशन कब हो जाएगा? व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हमने HBr के साथ ट्रीट कराया लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स. हाँ, शाबाश, ये याद रख लीजिए. तब एंटी मार्कोनिक एडिशन हो जाता है. लेकिन अगर आपने HCl को HI को पेरोक्साइड्स के साथ ट्रीट कराया, पेरोक्साइड्स के साथ ट्रीट कराया वहां पे एज पर MO रूल एडिशन हो जाता है. एंटी मार्कोनिक एडिशन वहां पे नहीं हो जाएगा. इन केस ऑफ HCl एंड HI अगर आपने पेरोक्साइड्स भी ले लिए लेकिन एज पर मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl पेरोक्साइड्स, लेकिन यहाँ पे एज पर मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा. H यहाँ पे और Cl यहाँ पे. CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3. या आपने HI ले लिया, H यहाँ पे I यहाँ पे. यहाँ पे पेरोक्साइड्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है व्हेन HCl और HI इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. चाहे पेरोक्साइड आप ले लो या नहीं ले लो, एज पर मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा. अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं ले लिया तब मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा. अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया तब एंटी मार्कोनिक एडिशन हो जाएगा. रिमेंबर दैट. इसका मैं यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाऊंगा. इसका मैं यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाऊंगा. व्हाई when we treat HBr hydrogen bromide या hydrobromic acid with unsymmetrical alkenes in the presence of peroxides, why there is anti-Markovnikov addition? Why not in case of HCl and HI? शाबाश. यहाँ पे भी हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की. शाबाश. देख लीजिए मैकेनिज्म. Addition of HBr to unsymmetrical alkenes in the presence of peroxides, it takes place by free radical mechanism. वहां पे free radical mechanism हो जाता है.
रिमेंबर दैट, 3 चीजें याद रख लीजिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तब हो जाता है जब हमने रिएक्शन में या तो हीट यूज की, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम रिएक्शन को दे रहे हैं, या तो सनलाइट और या तो पेरोक्साइड्स यूज किए। याद रख लीजिए, हाँ, 3 चीजें याद रख लीजिए। whenever we are using heat, whenever we are using sunlight, and whenever we are using peroxides, at that very time free radical mechanism will take place. When free radical mechanism will take place, there is homolytic fission. जब homolytic fission हो जाता है तो formation of free radicals is there है। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे कहा आप लोगों को, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वी आर यूजिंग पेरोक्साइड्स। या तो हम ये पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एल्काइल पेरोक्साइड, या तो हम ये पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, दिस इज नोन एज बेंजोइल peroxide. This is known as benzoyl peroxide. Huh? Shabash. Now, in case of free radical mechanism, remember that there are main 3 steps. First step is chain initiation या initiation step. Initiation step में हम यहां पे हमने पेरोक्साइड्स ले लिए, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। पेरोक्साइड्स ब्रेक हो, देयर इज, यहां पे O है, एक और O है, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। यहां पे होमोलिटिक फिशन हो जाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस C6H5, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, मींस ये 2 रेडिकल बन जाते हैं। हाँ, शाबाश। उसके बाद क्या हो जाता है, C6H5, C डबल बॉन्ड O रेडिकल। O रेडिकल मींस this is, there is 1 electron, these are known as free radicals, these are known as free radicals। homolytic fission में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया है, there is the formation of free radicals। ये free radical, यहां पे फिर से homolytic fission हो जाता है, यहां पे एक रेडिकल, यहां पे एक रेडिकल, वो रेडिकल इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, शाबाश, और प्लस C6H5 रेडिकल, C6H5 रेडिकल। नाउ दिस वेरी चेन इनिशिएशन स्टेप में बेंजोइल पेरोक्साइड ब्रेक हो जाता है, आखिर में शाबाश फिनाइल रेडिकल यहां पे बन जाता है। यही फिनाइल रेडिकल C6H5 रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करता है, HBr के साथ, बिकॉज वी आर यूजिंग शाबाश, and we are treating unsymmetrical alkanes with hydrobromic acid in the presence of peroxides। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएट हो जाती है, these are known as chain initiators, benzyl peroxides, या benzyl peroxide is a chain initiator या alkyl peroxide। शाबाश, यहां पे ये ब्रेक हो जाता है, H डॉट Br डॉट, वो H डॉट इसके साथ रिएक्ट करता है, यहां पे बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है और Br डॉट। अब चेन आगे बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज, रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, दिस इज नोन एज इन केस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेन प्रोपोगेशन या प्रोपोगेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। इनिशिएट कौन करता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, Br रेडिकल की, Br फ्री रेडिकल की। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ initiation step in case of when HBr is added to unsymmetrical alkanes। Shabash। Now propagation, second is
अब यही रेडिकल बी आर रेडिकल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के साथ रिएक्ट कर लेगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब कौन सा प्रोडक्ट है रिएक्शन में, क्या है आपके पास, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, किसके साथ आप इसको ट्रीट करा रहे हो, बी आर रेडिकल के साथ। ये बी आर रेडिकल कहां पे फॉर्म होता है, इनिशिएशन स्टेप में। यही बी आर रेडिकल अब ब्रेक कर लेगा इस पाई बॉन्ड को। रिमेंबर दैट, जब ये बी आर रेडिकल पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहां पे भी रेडिकल आ जाता है, यहां पे भी रेडिकल आ जाता है। मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। यहां पे देख लीजिए, मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा, या तो CH3CH रेडिकल और CH2Br की फॉर्मेशन हो जाएगी, या तो CH3CHBr CH2 रेडिकल। अगर देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहां पे, देख लीजिए जिस तरह से मैंने कार्बोकैटायंस के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, इन केस ऑफ Marconi Karpus addition, there is the formation of carbocation. Two carbocations were forming. One was primary and other was secondary. After that, हमने product determine किया on the stability of the carbocation. Secondary, as per secondary carbocation, जब secondary carbocation की formation हो जाती थी, तब हमने कहा कि ये product major quantity में बन जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन में क्या हो जाता है, बी आर रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH को ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मींस यहाँ पे भी एक रेडिकल, यहाँ पे भी एक रेडिकल के साथ अगर ये रेडिकल रह गया CH2 के साथ Br ने बॉन्ड बना लिया, मींस CH2Br, और यहाँ पे CH के साथ Br ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे CH2 रेडिकल, यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल और यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल। Secondary free radicals are more suitable than primary free radicals. Remember that. Secondary free radicals are more suitable than primary free radicals. That is why this very Br कहां पे ऐड हो जाता है, CH2 पे। That is why यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा CH3CH रेडिकल CH2Br। अब यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए मैं क्या कह रहा था, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, जो एडिशन होता है एंटी मार्कोनी कार्पस एडिशन हो जाता है। अगर एज पर मार्कोनी कार्पस एडिशन हो जाता तो H यहां पे Br की फॉर्मेशन हो गई, वो Br कहां पे जाता, उस कार्बन एटम पे जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन मैकेनिज्म में हमने देख लिया ये इस कार्बन एटम पे उसने अटैक किया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। नाउ इन द बिकॉज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ये CH रेडिकल CH2Br अब किसके साथ रिएक्ट करता है, HBr के साथ, और यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन हो जाता है। अब यहाँ पे H रेडिकल किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, CH के साथ, और Br रेडिकल यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br और Br रेडिकल। रिमेंबर दैट, ये Br रेडिकल फिर से इस पे अटैक कर लेगा और ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये HBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर से Br रेडिकल, और ये रिएक्शन इसी चेन में हो जाएगी, इसी तरह से बढ़ जाएगी। तब तक ये रिएक्शन होगी जब तक दोनों में से एक खत्म ना हो जाए या दोनों खत्म हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रख लीजिए, ये मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म दिखाया। क्यों यहाँ पे जब हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को HBr ऐड किया, वहां पे क्यों एंटी मार्कोनी कार्पस एडिशन हो जाता, वाई इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। मैंने ये मैकेनिज्म दिखाया, इनिशिएशन स्टेप में क्या हो जाता है और प्रोपेगेशन स्टेप में किस तरह से यहाँ पे एक्चुअली फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। दैट इज वाई एंटी मार्कोनी कार्पस एडिशन हो जाता है। और आखिर में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप होता है इन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन है, या टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में जितने भी प्रोपोगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो गई है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे। कौन कौन सा फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे? शाबाश, एक तो Br रेडिकल और ये वाला रेडिकल CH3 CH2Br, ये रेडिकल भी बन गया। याद रख लीजिए ये रेडिकल Br के साथ भी रिएक्ट कर पाएगा, या Br इसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा, या ये दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। मींस 3 रिएक्शंस यहाँ पे हो जाएगी, Br प्लस Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल गिव्स Br2। ये याद रख लीजिए, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। शाबाश, CH3 CH रेडिकल CH2Br प्लस Br रेडिकल के साथ ट्रीट कर लेगा, शाबाश, रिएक्ट कर लेगा। At that very time there is the formation of CHBr and CH2Br। याद रख लीजिए ये प्रोडक्ट भी बन सकता है लेकिन माइनर क्वांटिटी में, और ये एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर पाएंगे। CH3 CH रेडिकल CH2Br प्लस CH3 CH रेडिकल CH2Br, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? रिमेंबर इट, CH3 यहां पे CH2Br, यहां पे मैं लिखूंगा CH3 CH, यहां पे बॉन्ड CH2Br। हाँ, रिमेंबर इट, दिस इज नोन एज 1,2 dibromopropan। दिस इज नोन एज 1 2 3 4 1,4 dibromo 3,4 dimethyl butane। हाँ, इसकी भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है, इसकी भी फॉर्मेशन हो सकती है, और मैकेनिज्म में यहाँ पे भी ये भी फॉर्मेशन हो सकती है, और ये भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट होगा। रिमेंबर दैट, यही ओनली प्रोडक्ट नहीं होगा, बस ये मेजर क्वांटिटी में होता है, मेजर क्वांटिटी। हाँ, रिमेंबर इट, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्मड व्हेन प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr, ये भी एक प्रोडक्ट है लेकिन मेजर क्वांटिटी में है। हाँ, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, और Br भी प्रोडक्ट बन सकता है। रिमेंबर दैट, दिस इज द मेन मैकेनिज्म। हालांकि हम सिर्फ रिएक्शन में इतना दिखाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और हमने शाबाश H को यहाँ पे ऐड किया और CH2Br को यहाँ पे ऐड किया, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन हो जाता है। रिमेंबर इट, हाँ, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, ये मैकेनिज्म है वाई एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन हो जाता है। हाँ, शाबाश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैकेनिज्म मैंने दिखाया पूरी तरह से, इनिशिएशन स्टेप में, प्रोपेगेशन स्टेप में, तो टर्मिनेशन स्टेप में याद रख लीजिए सिर्फ फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और इतना याद रख लीजिए, जो भी प्रोडक्ट टर्मिनेशन स्टेप में बनता है वो ज्यादातर माइनर क्वांटिटी में होता है। हाँ, शाबाश। नाउ अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा आप लोगों को कि वी आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली हेलो एल्कीन्स या एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। यहाँ पे मैंने मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन दिखाया, एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन भी दिखाया। कब एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन हो जाएगा? शाबाश, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि HCl या HI के साथ मार्कोनिक, अगर पेरोक्साइड्स भी हमने यूज किए तो मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन क्यों नहीं होता है, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन क्यों नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा पेरोक्साइड्स, हाँ, और एक यहाँ पे HBr के साथ ट्रीट किया, पेरोक्साइड की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। HCl के साथ ट्रीट कराया, पेरोक्साइड्स यहाँ पे मैंने ले लिए, हाँ, HCl, पेरोक्साइड्स यहाँ पे नहीं है। HI, यहाँ पे पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस है, यहाँ पे H, फिर से HI, पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस नहीं है। रिमेंबर दैट, सिर्फ दिस एंड दिस, इन पांचों केसेस में MO एडिशन हो जाएगा, MO एडिशन हो जाएगा।
व्हाट इज मेंट बाय एमओ एडिशन? जो हाइड्रोजन एटम होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे, वो हाइड्रोजन एटम उसी कार्बन पे अटैक कर लेगा जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। रिमेंबर दैट ये कार्बन एटम, इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पे इस कार्बन एटम पे दिस इज चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, मींस यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहाँ पे सी, यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, एक हाइड्रोजन एटम है, मींस इन 5 केसेस में हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और Br Cl यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी एमओ मार्कोनी कार्बन एडिशन हो जाता है। एंटी में क्या हो जाएगा? H उसी कार्बन पे जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होंगे और Br उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? शाबाश, यहाँ पे Br और यहाँ पे H। इन केसेस में अगर फिर से यहाँ पे भी Br ले लिया लेकिन पेरोक्साइड्स नहीं है, Br यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। हाँ शाबाश, यहाँ पे एज पर मार्कोनी कार्बन एडिशन, बस इतना याद रख लीजिए। पेरोक्साइड्स को आपने यूज किया, बस इफेक्ट होता है, वो काम करता है तभी एंटी मार्कोनी कार्बन एडिशन जब HBr होगा। हाँ शाबाश, यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, why not in case of HCl, why not in case of HI when you are using peroxides, but still then addition takes place as per Markovnik's rule. Remember that मैं यहाँ पे प्रोपेगेशन के 2 स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे ये X डॉट है। X डॉट कहाँ से फॉर्म होता है? इनिशिएशन स्टेप में। अगर Br तो Br डॉट, Cl तो Cl डॉट, I तो I डॉट। यहाँ पे क्या हो जाता है? दिस इज फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे X डॉट, शाबाश बेटा, X डॉट किस कार्बन एटम पे जाता है? उस कार्बन एटम पे जहां से एक मैक्सिमम फ्री रेडिकल की, मतलब मैक्सिमम स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या हो जाता है? CH डॉट CH2X, यहाँ पे HX को ये ब्रेक करता है। HX को जब उसने ब्रेक किया, H डॉट यहाँ पे आ जाता है, CH3 CH2X प्लस X डॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज स्टेप फर्स्ट ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज स्टेप सेकंड ऑफ प्रोपोगेशन। रिमेंबर दैट यहाँ पे अगर हमने HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया एंड HI ले लिया, हमने पेरोक्साइड्स को यूज किया है। लेकिन रिमेंबर दैट स्टेप फर्स्ट इन केस ऑफ HF, अगर हमने HF ले लिया, मीन्स वहां पे अगर हमने HF ले लिया, इसका मतलब है इनिशिएशन स्टेप में F रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। इनिशिएशन स्टेप में F रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल, ये इनिशिएशन स्टेप में हो जाता है। जब ये F रेडिकल यहाँ पे ऐड हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो रिमेंबर दैट द स्टेप फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि जो ही शाबाश रेडिकल और रेडिकल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है। मींस F रेडिकल और CH2 रेडिकल में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 F रेडिकल F बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिस वेरी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ H, मतलब F रेडिकल टू प्रोपाइलिन है या प्रोपियन। नाउ स्टेप सेकंड में क्या हो जाता? यहाँ पे CH3 CH CH2 X रेडिकल के बदले F रेडिकल और यहाँ पे HF। रिमेंबर दैट HF इज ए वेरी शाबाश वीक एसिड, मींस H और F के बीच में जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को HF, अगर ये HF है, अगर हमने F रेडिकल पहले स्टेप में यूज किया है, अगर ये HF है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पे H और F के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, मींस हमें एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये HF बॉन्ड को ब्रेक कर ले। मींस ये सेकंड स्टेप, इसका स्टेप फर्स्ट
और स्टेप सेकंड ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है. रिमेंबर, इन केस ऑफ द एडिशन ऑफ शाबाश HF, the propagation step first is exothermic while as propagation step second is endothermic. Now यहाँ पे HCl हमने यूज किया किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड ने क्या बनाया? Cl रेडिकल. विद द हेल्प ऑफ पेरोक्साइड Cl रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहाँ पे भी Cl रेडिकल जब इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक. और सेम इज द केस हियर. यहाँ पे शाबाश HF, HCl, HBr एंड HI. यहाँ पे भी H और Cl के बीच में थोड़ा जो बॉन्ड है, शाबाश, ये सेकंड पॉइंट पे ही आता है. रिमेंबर दैट ये भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. इसको भी ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी. दैट इज व्हाई एंडोथर्मिक. स्टेप सेकंड भी एंडोथर्मिक इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HCl. यहाँ पे HCl को हमें ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो इसके साथ रिएक्ट कर पाए. रिमेंबर दैट. आप लोग मुझसे कहोगे सर जब यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है, जब यहाँ पे फॉर्म होता है यहाँ पे ब्रेक होता है. यहाँ पे ब्रेक करने में हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी. जब यहाँ पे फॉर्म होता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है. ओवरकम करता है, ज्यादा हमें एनर्जी की ही जरूरत पड़ जाती है इन केस ऑफ HCl एंड इन केस ऑफ HF ब्रेक करने में. दैट इज व्हाई स्टेप सेकंड इज एंडोथर्मिक. नाउ HBr, Br रेडिकल. यहाँ पे जब Br रेडिकल तो एक्सोथर्मिक. हमने पेरोक्साइड्स को यूज किया, HBr के साथ ट्रीट कराया, HCl के साथ ट्रीट कराया, HF के साथ ट्रीट कराया. मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक. सेकंड स्टेप इज एंडोथर्मिक. लेकिन रिमेंबर दैट HBr बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है. दैट इज व्हाई ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक. दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक. रिमेंबर दैट during exothermic process delta H is negative. Delta H is negative. जब delta H negative होता है, delta G is also negative. Remember that. Gibbs free energy change, enthalpy change. Enthalpy change जब negative होगी, कब negative होती है? जब energy release हो जाती है. जब enthalpy change negative होती है तो Gibbs free energy change which is equal to delta G is equal to del H minus T del S. जब ये negative, that means del G is negative. Process is spontaneous. Process is spontaneous. जब del G negative आ जाएगा. शाबाश. अब HI. Remember that dear students. मैंने कहा इनिशिएशन स्टेप में कौन कौन सा रेडिकल बन जाएगा अगर हमने HF यूज किया, HCl यूज किया, HBr यूज किया, HI यूज किया. हर एक का अपना अपना रेडिकल. I रेडिकल. Remember that with respect to free radicals. जितना ज्यादा साइज फ्री रेडिकल का, जितना फ्री रेडिकल का साइज होता है, as we know whenever we are moving from top to bottom, size, atomic size increases. इस फ्री रेडिकल का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, मीन्स उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कम रिएक्टिव होगा. उसको फर्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पे I डॉट है, उसको रिएक्ट कराने में, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, I डॉट इज लेस रिएक्टिव, उसको रिएक्ट कराने में हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी. इसका फर्स्ट स्टेप ही एंडोथर्मिक होता है. इसका फर्स्ट स्टेप ही एंडोथर्मिक होता है. व्हाई? More the size of the free radical, less reactive it is. More the size of the free radical, less reactive it is. That is why इसका फर्स्ट स्टेप ही एंडोथर्मिक है. हाँ, H और I के बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा एज कंपेयर टू HF. यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है. सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक. यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि why in case of peroxides, when we are treating peroxides with HBr with alkenes, why addition takes place as per anti-Marconi-Kopf's rule only in case of HBr, not in case of HCl, not in case of HF, not in case of HI, because in case of HBr both the steps are exothermic. एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि एनर्जी कम होगी. जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है जो प्रोडक्ट बन जाएगा स्टेबिलिटी मोर. In this very case, that is why in this very case during the addition of HBr to unsymmetrical alkanes in the presence of peroxides, both the steps are exothermic. That is why addition takes place as per
एंटी मार्कोनी-काफज रूल और रिएक्शन फेवरेबल है, रिएक्शन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक एक स्टेप, एंडोथर्मिक एक स्टेप, एक्सोथर्मिक. दिस इज द रीजन व्हाई ओनली इन केस ऑफ HBr एंटी मार्कोनी-काफज addition during the presence of peroxides is observed. This is all about the preparations of haloalkenes from alkenes as per Marconi-Kauf's rule, as per anti-Marconi-Kauf's rule. Shabash. Now और एक स्टेप है, और एक प्रिपरेशन मेथड है from alkenes, that is from this is second step, that is allylic halogenation, allylic halogenation of alkenes. For example, हमारे पास एक unsymmetrical alkene है CH double bond CH2, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो उसका बगल वाला कार्बन होता है, दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बन, दिस इज नोन एज एलाइलिक कार्बन. व्हेन unsymmetrical alkenes are treated with chlorine at high temperature, at very high temperature, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया. शाबाश. एट दैट वेरी टाइम, रिमेंबर दैट when unsymmetrical alkenes are symmetrical alkenes, simply अगर यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लिया, क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया, यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस CH2 के साथ भी Cl आ जाएगा और इस CH2 के साथ भी Cl आ जाएगा. दिस इज आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ haloalkenes from alkenes when they are treated with halogens, Cl2, X2, what we can say Br2, I2. शाबाश. दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, बहुत सिंपल है. लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे हमने क्लोरीन को ट्रीट किया, तो रिमेंबर दैट व्हाट हैपेंस, देयर इज एलाइलिक हैलोजिनेशन, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने Cl2 को या X2 को या Br2 को व्हाट वी कैन से एट हाई टेम्परेचर किसके साथ ट्रीट कराया, एक एल्कीन के साथ हेलोजिनेशन कराई. यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अभी मैंने कहा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मेनली 3 कंडीशन याद रख लीजिए. यहाँ तो हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो सनलाइट यूज कर रहे हैं, या तो पेरोक्साइड्स यूज कर रहे हैं. यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा. यहाँ पे Cl आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ Cl डॉट, यहाँ से H डॉट बाहर निकलेगा, वो Cl डॉट से रिएक्ट कर पाएगा. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH2 Cl CH double bond CH2 plus HCl. This is the preparation of haloalkenes, but allylic haloalkenes. This is known as 1, 2 and 3. 3 chloropropene. This is known as allylic halogenation. Treatment of शाबाश alkenes with chlorine at high temperature, या और एक चीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं CH3 CH double bond CH2 in the presence of NBS at high temperature या sunlight हम यूज कर रहे हैं. NBS, this is known as N bromo succinimide. एट दैट वेरी टाइम ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, किस पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन पे. यहाँ पे CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2. एन ब्रोमोसैक्सिनामाइड की ये स्ट्रक्चर है, N एंड Br. यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है. सनलाइट, यहाँ पे Br रेडिकल किसके, Br रेडिकल इनिशिएशन स्टेप में जनरेट हो जाएगा, जिस तरह से वहां पे मैंने मैकेनिज्म दिखाया. इनिशिएशन स्टेप में Br रेडिकल बाद में वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा,
और एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स सर कि व्हाई नॉट देयर इज द Cl अटैक्स एट CH डबल बॉन्ड CH2 बिकॉज जब हमने हेलोजेन्स को ट्रीट किया एल्कीन्स के साथ यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिमेंबर दैट एट हाई टेम्परेचर ये अगर Cl यहाँ पे अटैक कर लेगा तो एट हाई टेम्परेचर ये रिवर्सिबल है, क्लोरिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है। दैट इज व्हाई यहाँ पे एलाइलिक हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है और एलाइलिक हैलोजिनेशन हो जाती है। या NPS को एल्कीन के साथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ट्रीट कराया तो एलाइलिक पोजीशन पे Br ऐड हो जाएगा। या और एक रिएक्शन है, हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को सल्फरल क्लोराइड SO2Cl2 के साथ ट्रीट कराया, शाबाश, यहाँ पे भी एलाइलिक हैलोजिनेशन CH2Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl। हाँ, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ का Cl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे शाबाश H डॉट को रिप्लेस कर लेगा, वो H डॉट इस Cl के इस दूसरे वाले Cl डॉट के साथ रिएक्ट कर पाएगा और यहाँ से SO2 बाहर निकलेगा। दिस इज ऑल्सो हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स। जो फर्स्ट स्टेप है सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हैलोजन एसिड यूज किया, मार्कोनी-काफस एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनी-काफस एडिशन। रिमेंबर दैट ओनली इन केस ऑफ HBr। उसका रीजन भी मैंने बताया, उसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया। हाँ, मार्कोनी-काफस एडिशन का मैकेनिज्म भी मैंने बताया कि क्यों मार्कोनी-काफस एडिशन होता है। शाबाश। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट याद रख लीजिए एलाइलिक हैलोजिनेशन भी होती है जब हमने हैलोजेन्स को अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ट्रीट कराया, वहां पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। शाबाश। दिस इज ऑल अबाउट the preparations of haloalkanes from alkenes. In the next preparation method we will discuss very important topic related to preparations of haloalkanes, that is from alkanes, alkane part जहां पे हम halogenation of methane discuss कर लेंगे। हाँ, wait for my next class, तब तक के लिए all the very best।